Here is the total internal reflection. Here, if a source of light is placed in the denser medium, if light passes normally, it does not deviate from its no refraction takes place. But when incident at a particular angle, the light is refracted from its path. Since passes from water to air, then it is a move away from the normal. So R is greater than I in this case. फिर लाइट अगर थोड़ा सा हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दें, then we find that at a particular angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree. यहाँ पे लाइट इस फार में निकली, लेकिन यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री. ये लाइट एकदम सरफेस पे जाएगी. इट पासेस थ्रू द सरफेस, एंड व्हेन इट पासेस थ्रू द सरफेस, देन द सरफेस विल बी कंप्लीटली लाइटेड. सरफेस पे पूरी चमक आ जाएगी. लाइट ग्रेजेस टू द सरफेस. इट इज फाउंड दैट अगेन when angle of incidence is greater, इस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, दिस इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल. इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर द क्रिटिकल एंगल, अगर लाइट क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो गई तो सरफेस पे ना होकर के सरफेस के अंदर चली जाएगी. तो इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर द क्रिटिकल एंगल, then the light is totally internally reflected in the same medium. Light उसी मीडियम में चली जाती है पूरी तरह से. This is known as the total internal reflection. तो अभी हम लोग क्रिटिकल एंगल पढ़ेंगे थोड़ा. नोट डाउन द क्रिटिकल एंगल. Note down when light passes from denser medium to rare medium. When light passes from denser medium to rare medium, angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree. Denser to rare. Denser to rare medium. Okay. Angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree. Angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree is known as the critical angle. Is known as the critical angle. Angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree is known as the critical angle. Suppose light passes from water to air. Suppose light passes from water to air, then W mu A, it is equal to sin IC upon sin R. R 90 हो रहा है, sin IC upon sin 90. Here it is 1 upon 1 mu W, it is equal to sin IC. Sin 90 की वैल्यू 1. So sin IC it is equal to 1 upon A mu W, मतलब 1 upon mu. Sin IC it is 1 upon mu, or mu is equal to
larger the refractive index, smaller will be the critical angle. अगर हमारा पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर जितना ज़्यादा होगा किसी मीडियम का, क्रिटिकल एंगल उतना ही छोटा होगा। ये हमारे पास डायमंड का क्रिटिकल एंगल 24.4 डिग्री होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 सबसे ज़्यादा होता है, तो उसका जो क्रिटिकल एंगल आता है 24.4 डिग्री। और वाटर का करीब 48 डिग्री और ग्लास का 41, ग्लास के लिए 41 डिग्री क्रिटिकल एंगल आता है, डायमंड का 24 पे आता है। इसीलिए डायमंड की कटिंग इस तरह से करते हैं तो क्रिटिकल एंगल पे ही गिरे या क्रिटिकल एंगल से अधिक लाइट गिरे, अंदर पास हो, ताकि अंदर ही रह जाए, लाइट बाहर न जाए। तो ये हमारा रिलेशन मिल गया, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये चीज़ हमें मिल जाती है। अच्छा, when light passes from a total internal reflection, इसके बाद लिखेंगे definition, when light passes from denser medium to rare medium, note down, when light passes from denser medium to rare medium, angle of incidence for which angle of when light passes from denser medium to rare medium, if angle of incidence is greater than the critical angle, if angle of incidence is greater than the critical angle, then light is totally internally reflected in the same medium. Then light is totally internally reflected in the same medium. This is known as the total internal reflection. This is known as the total internal reflection. Condition for the total internal reflection पूछा जाता, what is the condition for the total internal reflection? तो हम condition क्या होती है, condition for TIR भी कहते हैं, total इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पहली कंडीशन ये है, लाइट शुड पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। लाइट शुड पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, angle of incidence should be greater than critical angle. Angle of incidence should be greater than critical angle. So first condition, it should pass from denser to rare, and second condition, the angle of incidence should be greater than critical angle. Critical angle से अधिक होना चाहिए। ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन थोड़ा हम देखेंगे। लाइट फ्लावर एक बनाते हैं, मेले में मिलता है, तुम लोग देखते हो क्या? ऐसे रहता है और यहाँ पे एक LED लगा देते हैं और यहाँ से पतला पतला तार ऐसे, और यहाँ पे हर टिप पे लाइट होती है, कलर फार में दिखने लगता है। लाइट अंदर खोखला ही रहता है, कुछ नहीं रहता इसमें, केवल इसमें कनेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। उसका रीजन क्या है, इसमें ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जाता है। अंदर ये रेयर मीडियम होता है, डेंसर, बाहर वाला रेयर। लाइट यहाँ से जाती है ऐसे रिफ्लेक्ट हो करके। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एनर्जी का लॉस नहीं होता, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो करके। अब ये यहाँ छोटी सी लाइट हर जगह लाइट हो जाती है, हर जगह। तो
थोड़ा सा दिखता 50 रुपये मिलता है ना मार्केट में, जो बच्चे मेला वाला में रहता है तो अच्छा लगता है। ये इसका एप्लीकेशन है लाइट का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का रेनबो में, अब रेनबो में हमेशा ऐसे रेनबो होता है, जब लाइट यहाँ पे जाती है अंदर गई 7 कलर में बट गई, 7 कलर फिर हमारे पास आए, सातों कलर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्शन के साथ दूर तक फैल जाते हैं तो हमें 7 कलर दिखने लगता है, तो रेनबो बन जाती है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज किया जाता है रेनबो, इसका एप्लीकेशन है सब। और हमारे पास ये हमारे पास इसको लाइट फ्लावर देख ही रहे हो एप्लीकेशन। और एंडोस्कोपी में एंडोस्कोपी किया जाता है, एंडोस्कोपी में होता यह है अंदर एक लाइट पाइप डालते हैं, अंदर की हर चीज पूरा क्लियर कट दिखती है, एंडोस्कोपी कहते हैं। एंडोस्कोपी अंदर की पूरी चीज क्लियर स्क्रीन पे ऐसे देखने लगते हैं, एंडोस्कोपी में इसका यूज किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर होता है, इट इज ए डिवाइस इट इज यूज फॉर द टोटल इंटर ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ यूज किया गया। ऑप्टिकल फाइबर हमारा एंडोस्कोपी में यूज किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, फाइबर माने रेशा, ऑप्टिक माने लाइट के लिए रेसे जैसा बना रहता है। ऑप्टिकल फाइबर हमारा जो होता है इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका कंसेप्ट ये है कि इसमें जो इनर कोर होता है दैट इज द डेंसर मीडियम, आउटर कोर जो होता है ये हमारे पास, अगर हमारे पास ये म्यू2 है, ये म्यू1, तो म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1, और कोई इंफॉर्मेशन यहाँ से सेंड होती है तो ये ऐसे, तो टेलीफोन का जो तार होता है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर पे डिपेंड करता है। हमारी जो साउंड एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करने के बाद वह टोटली इंटरनली रिफ्लेक्शन से दूर तक चला जाता है, बाहर नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि सरफेस से ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस तरह से हमारा ये सब एप्लीकेशन है। और भी कुछ है, मिराज का नाम सुन, हाँ नहीं, डेजर्ट में जो दिखाई पड़ता है, तो इसके एप्लीकेशंस बता दो। मिराज, उसको इंग्लिश में मिराज बोलते हैं? नहीं, उसको इंग्लिश में तो मिराज है, हिंदी में उसको मृगमरीचिका कहते हैं। मिराज लिख सकते हो, मिराज का इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन due to which water appears in absence of water. Due to which water appears in absence of water. देखो होता क्या है, हमारे पास वाटर अपीयर्स इन एब्सेंस ऑफ वाटर। होता ये है कि डेजर्ट में ऐसा दिखता है, गर्मी के दिनों में सड़क पे भी दिखता है, पानी दिखता है।
नहीं होता यह है कि गर्मी के दिनों में सरफेस एकदम हार्ड हो जाता है। हाँ हाँ, तो हिलता हुआ से निकल के वो ऐसे दिखाई देता है। तो होता ये है, नहीं तो वहाँ पे इमेज तो कुछ पेड़ रहे तो वहाँ उल्टी दिख जाए। होता यह है कि ये सरफेस एकदम हार्ड हो गया तो ये रेयर मीडियम की तरफ बिहेव करता है, तो ये यहाँ पे रेयर मीडियम बनता है। गर्म हवा ऊपर उठती है तो एक डेंसर मीडियम बनता है, ये रेयर मीडियम बनता है। लाइट जब यहाँ से चलती है ऐसे, इट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसे ही अवे होते होते एक ऐसी पोजीशन आ जाती है, ऑब्जर्वर की आंख में जो लाइट यहाँ से खिंच जाती है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर द क्रिटिकल एंगल, लाइट इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम। तो ऑब्जर्वर तक जो लाइट पहुंचती है तो ऑब्जर्वर को ये लगता है कि यहाँ ऑब्जर्वर है कि ये हमारे पेड़ की उल्टी इमेज यहाँ पे बनी हुई है। इसका मतलब वो उसी तरह से दिखती है जैसे पानी में उल्टी इमेज पेड़ की दिखती है, तो उसे लगता है कि पानी है और उसकी उल्टी इमेज बनी हुई है। तो आदमी को तो ज्ञान हो जाता है। इसको हिंदी में मृग मरीचिका कहते हैं। मिराज को मृग मरीचिका, मृग को भ्रम हो जाता है। मरीचिका मीन्स भ्रम, मृग को भ्रम हो जाता है। मृग माने हिरण, हिरण को भ्रम हो जाता है कि वहां पे पानी है। इसको मृग तृष्णा भी कहते हैं, प्यास। मृग तो मृग वहां जाता है डेजर्ट में, पानी पाता नहीं है, फिर दूसरी देश से वहां होगा, ऐसे ही दौड़ता रहता है और तो फिर कहीं पर उसे मिलता है, सलमान खान मार देता है तो सारी प्यास बुझ जाती है। सारी प्यास खत्म। ये हमारे पास, ये समझ में आ रही बात, यही हमारे पास होता है मिराज। मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन ड्यू टू व्हिच वाटर अपीयर्स इन एब्सेंस ऑफ वाटर। इसकी इन्वर्टेड इमेज, अब देखो नीचे का सरफेस हमारा डेंसर, ये हमारा रेयर मीडियम बन जाता है, ऊपर का सरफेस डेंसर मीडियम, ऊपर इसके रिस्पेक्ट में कोल्ड एयर होती है, इसके रिस्पेक्ट में, तो ये डेंसर मीडियम हो जाएगा, ये रेयर मीडियम। लाइट जो पास होगी ऑब्जर्वर के पास, वो डेंसर से रेयर में जाती है। At a particular point, angle of incidence is greater than the critical angle, then the light is totally internally reflected in the same medium. लाइट इसी मीडियम में चली जाती है। तो होता क्या है, ऑब्जर्वर को लगता है कि लाइट जब ऐसे ही जाती है, ऑब्जर्वर को लगता है कि सीध में लाइट इसकी इमेज उल्टी यहाँ से यहाँ दिख करके यहाँ से दिखती है, तो इसकी उल्टी इमेज यहाँ दिखती है और लगता है कि image है, this image appears like a inverted image in the water, so that appears water although there is no water। तो ये इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, बुक तो तुम लोग आते नहीं हो। ये किसी ऐसे पूछा जाता है कि अगर हमारे पास ऐसे पानी भर दिया गया है, यहाँ पे सोर्स रख दिया गया है, कितनी एरिया से पानी निकले, एरिया से लाइट निकलेगी, तो लाइट ऐसे सीधे निकल सकती है 90 डिग्री पे। अगर ये क्रिटिकल एंगल पे यहाँ गिरेगी तो इस सरफेस पे चली जाएगी, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल पे चलेगी तो सरफेस पे चली जाएगी। परिणाम क्या होगा, ये लाइट इतने पार्ट से निकल पाएगी, ये एरिया जो होती है ये। तो ये देख लेना, ये हमारे पास एक क्रिटिकल एंगल है, ये भी आई सी,
इसका रेडियस अगर कैलकुलेट कर लेते हैं, हम उसकी एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमारे पास लाइट सोर्स यस है, यह ओ है, यह पी है, तो हमें पता है कि साइन आई सी क्या होता है। साइन आई सी 1/μ। और यहाँ पे अगर रेडियस निकालना हो तो इसमें अगर हम इसकी हाइट अगर h ले लें तो tan IC की बात अगर करें, tan IC इट इज इक्वल टू रेडियस r ले लें तो r/h हो जाएगा। r इज इक्वल टू h tan IC। और इस तरह से हम साइन आईसी से tan आईसी निकाल सकते हैं। कैसे? ये ट्रायंगल बना लो, ये आईसी हो गया 1/μ, साइन आईसी इज 1/μ, तो ये 1 हो गया, ये म्यू हो गया, ये हो गया म्यू स्क्वायर -1। तो हम निकाल सकते हैं h इज इक्वल टू tan आईसी क्या होगा 1/√μ स्क्वायर -1, ये होगा tan आईसी। tan आईसी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें मिल गया, यही मिल गया एक तरह से h/√μ स्क्वायर -1। अब इसकी एरिया, कितनी एरिया से लाइट निकलेगी, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई वैल्यू ऑफ r h/√μ स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, इसको A कहते हैं। यही मिल जाएगा, पाई h/√μ स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, यही मिलेगा। इस तरह से हम कैलकुलेट ही कर लेते हैं कि लाइट कितनी एरिया से निकलेगी। तो ये चीज़ हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यही इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये एप्लीकेशन। ऑप्टिकल फाइबर हो गया, फ्लावर हो गया, एंडोस्कोपी हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम में आ गया, एंडोस्कोपी में देख ही लिया हमने। तो ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पूछता है कभी कभी यूजेज। तो एंडोस्कोपी, कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑप्टिकल फाइबर, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। हाँ, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक आता है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, डायमंड का जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है डायमंड का, तो डायमंड का कटिंग हम इस तरह से करते ही हैं कि लाइट जब जाती है यहाँ से तो फिर रिफ्लेक्ट होकर के इसमें जाती है, रिफ्लेक्ट होके, रिफ्लेक्ट होके, रिफ्लेक्ट होके। PTM for 10th and 12th, 3rd December. So the subject teachers are requested to submit half-yearly examination bundles to the class teachers and mark list to be made itself. समझ गए ना? थर्ड को देखो, लाइट यहाँ गई, निकल नहीं पाई, फिर कहीं नहीं निकल पाई, फिर कहीं नहीं निकल पाई, फिर भी नहीं निकल पाई। परिणाम क्या हुआ कि गैदर हो रही, फिर दूसरी लाइट एंटर की, ऐसे ही अंदर अंदर गैदर हो रही। अब गैदर होते होते लाइट कलेक्ट हो जाती है। अब कलेक्ट हो जाती है, कुछ कार्नर्स निकलती है, तो जहाँ से निकलती है वहाँ स्पार्कलिंग कलेक्ट हो जाती है। यही इसका, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक एप्लीकेशन है। कितनी देर तक लाइट अंदर रहती है? लगातार जाती रहती है, तो कैसे क्या मालूम कि अंदर रहते हैं।
निकलती रहती जाती रहती। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे टोटली रिफ्लेक्टिंग फ्रिंज। टोटली रिफ्लेक्टिंग फ्रिंज टोटली रिफ्लेक्टिंग फ्रिंज। तो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म अगर हमारे पास लिखना है, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ये भी एप्लीकेशन में आता है, एप्लीकेशन में ही आएगा। अब देखो जरा, एक ऐसा प्रिज्म हो जो 90 डिग्री पे हो या 45 हो, इट इज आल्सो 45। तो अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखें और यहाँ पे लाइट जाएगी, तो लाइट अगर गई तो ये 90 डिग्री पे गई, तो ये देख लेना अब ये 45, इट इज आल्सो 45, ये भी 45 है। लाइट एक ही रही ऐसे, अब ऐसे होगी। अब देखो लाइट ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हैं, तो इसका यहाँ से गया, बाहर लाइट नहीं गई, हम इधर आ गई, यह ए। फिर दूसरा जरा बी के लिए बी पार्ट से देखें, लाइट और ये हो गया, यह ए हो गया और ये बी। टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टर का यूज करके हम लोग इसको देख रहे हैं कि जो ये ए बी ऑब्जेक्ट यहाँ जो है उसको हम दूसरी तरफ देख रहे हैं, ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बस समझ आ रही है। और फिर डेविएशन, फिर इसी प्रिज्म को अगर इस तरह से रख दिया जाए, ये 90 डिग्री है ही है, अगर हम ऐसे करें, ऐसे, अब ये बी, फिर ये यहाँ आया, इसको कहते हैं डेविएशन थ्रू 180 डिग्री, इसको डेविएशन थ्रू 90 डिग्री लिखते हैं। डेविएशन थ्रू 90 डिग्री, 90 डिग्री चला गया ना, इसको कहते हैं डेविएशन थ्रू 180 डिग्री। ये गया इधर से, फिर इधर से आ गया, इट इज ए। और फिर जरा इधर से आया तो हमारे पास ए आया बी, तो हम देख रहे हैं उल्टी इमेज बन रही है इसकी। ये देखो इधर से डेविएशन थ्रू 180 डिग्री, ध्यान रखना, डेविएशन थ्रू 180 डिग्री, डेविएशन थ्रू 180 डिग्री गया, फिर लौट आएगा। ऐसे ही ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे और एक फिर ऐसे निकल, इसको कहते हैं डेविएशन थ्रू 0 डिग्री। ये ए बी है, ऐसे नॉर्मल ऐसे काटना, तो ए से लाइट गई इधर इधर, ए डैश हुआ, इधर बी से लाइट इधर, बी डैश ए डैश, इसको कहते हैं डेविएशन थ्रू 0 डिग्री। एक पैरेलल गया, पैरेलल ही निकल गया, तो डेविएशन थ्रू 0 डिग्री, डेविएशन थ्रू 90 डिग्री, डेविएशन थ्रू 180 डिग्री और डेविएशन थ्रू 0 डिग्री, इसको लिखते हैं। ये बनाने को आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। डेविएशन थ्रू 0 डिग्री,
डेविएशन थ्रू 0 डिग्री होती है। ध्यान में रखना। होता क्या है, देखो ये 45 डिग्री है, लाइट भी तो ये 90 है, ये 45, ये 45 हुआ। अच्छा ये नॉर्मल है तो ये भी 45 हुआ। क्योंकि लाइट जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर, इसके लाइट के ग्लास के लिए लाइट क्रिटिकल एंगल 40 होता है, 41। ये कितना हो रहा है 45, तो 40 क्रिटिकल एंगल से अधिक हो गया, तो लाइट अब इस बाहर नहीं निकलेगी, इसी मीडियम में आ जाएगी। तो अब देखो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, यही हमारा टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इसको कहते हैं। डेविएशन थ्रू 90 डिग्री, डेविएशन थ्रू 180 डिग्री एंड द डेविएशन थ्रू 0 डिग्री। समझेगा, ये हमारे पास है, ये भी एक तरह का प्रिज्म का यूज है, मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कि लाइट ट्रांसपेरेंट सरफेस पे गिर रही है लेकिन बाहर नहीं जा रही है, फिर अंदर आ जा रही है। ऑब्जेक्ट रखते यहाँ दिखती है, यहाँ दिखते दिखती है नीचे, और यहाँ दिखती इसकी उल्टी यहाँ बच जाती है। तो ये हमारे पास टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ये इसका एप्लीकेशन है। और अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस। इसके बाद लेंस पूरी का मिनट बचा, खत्म हो गया, 4 मिनट बचा है, 3 मिनट बचा है। चलो तो ये हम लोगों को पढ़ेंगे। अब इसके बाद प्रिज्म और रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स सरफेस, लेंस लेंस पढ़ेंगे।